Hello all my dear students, good morning to all of you. Welcome in today's class, and as you know, I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and I am welcoming you to all once again to your official YouTube channel, that is Biology at Your Fingers, on the behalf of Subrat Singh Children Academy, Jaunpur. And as you know, at present your chapter number 6, that is molecular basis of inheritance, is running. And in this chapter, in previous videos, we have discussed about the genetic material, its experimental proof, as well as DNA versus RNA, and we can say that properties of the genetic material. So in today's class we are going to discuss about the DNA replication. That is the most complicated, most important question for your all kind of examination. You are never going to skip this question. So without wasting the time, I am starting with the DNA replication. So before starting the DNA replication, let's take some introductory portion, and then after we will start the DNA replication. So DNA replication is a complex mechanism that require various steps as well as various enzymes as well as various ions and proteins, we can say that. तो DNA रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसमें बेटा एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, या हम कह सकते हैं प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, सर्टेन आयंस की ज़रूरत पड़ती है. सो देयर इज़ ए कंप्लीट मशीनरी फॉर द रेप्लिकेशन. ओके, एंड रेप्लिकेशन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज डिफरेंट. व्हाई? इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, DNA replication takes place in the cytoplasm directly, while in the case of eukaryotes, DNA replication takes place in the S phase of the cell cycle. As you know, you all aware about the cell cycle. There are various phases such as G0, G1, G2 and S phase. So in S phase or synthetic phase, what replication takes place in the case of eukaryotes, and in the case of prokaryotes it takes place in the cytoplasm. While if we are going to consider the bacteria, it takes place just prior to fission. यानी अगर हम देखें तो बैक्टीरिया में जब फिजन होना होता है उसी के जस्ट पहले ये हो जाता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पोर्शन, एंड लेट्स कंसीडर द बेसिक आइडिया of replication of the DNA is just based on double helical model of the DNA that was given by Watson and Crick. It means that DNA replication is just based on the double helical model and it's semi conservative, as we discussed in previous videos. Okay, when we were just proving that yes, DNA is the genetic material. ओके, और उसमें हमने आपको बताया भी था कि DNA रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड है या एक सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, जिसमें 50% पेरेंटल स्ट्रैंड और 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होते हैं. ठीक है बेटा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पोर्शन. सो लेट्स स्टार्ट. DNA रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस. दिस इज अ प्रोसेस बाय विच DNA forms its own copy. DNA form its own copy. Okay, where it takes place, the site of replication, as we discuss, मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें. फर्स्ट, इन prokaryotes it takes place in the cytoplasm. You all aware about this. While in the case of eukaryotes, it takes place in the S phase of cell cycle. And in the case of bacteria, we can write it takes place just before or just prior to fission. Actually, what is the actual mode of DNA replication and what are the certain steps, what are the certain enzymes, we will discuss later on, because we are taking just introductory portion here. That's why we will discuss some key points, and then after we will discuss about the various enzymes as well as various machinery. So let's take once again introductory portion. In DNA replication, because DNA have two strands, those are anti-parallel to each other and held together by means of hydrogen bonds. Let's recall the structure.
द स्ट्रक्चर वॉज समथिंग लाइक दिस, यू हैव ऑफन सीन। स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह का आपको हमने बना के दिखाया था। ओके, सो हियर इफ वी आर स्टार्टिंग 5 प्राइम इट विल कम्स एंड हियर 3 प्राइम and here 3 prime and here 5 prime. So these two strands are anti-parallel with each other and these are held together by means of hydrogen bond. In between these two there is a presence of nitrogenous bases and those nitrogenous bases are held together by means of weak attraction, and that weak interaction or attraction is known as hydrogen bond, that was represented by dotted lines as we discussed in previous videos. So here in the first step of the DNA replication, these two strands are separated from each other and that is known as opening or we can write unwinding of DNA, unwinding of DNA strand. So in the first step ये जो आपको लैडर केस दिख रहा है ये करेगा क्या, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा. So first step, in the first step DNA strand got opened up or got unwind by breaking the weak attraction, those were hydrogen bond. और ये इतना अच्छा वाला काम कौन करते हैं, एक पर्टिकुलर एंजाइम करता है जिसको हम कहते हैं हेलिकेज. ठीक है बेटा, अभी मैं बताऊंगा सारे एंजाइम्स, बट स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ. तो सपोज ये दोनों स्टैंड्स बेटा अलग हो गए. ओके, दीज टू स्टैंड्स गॉट separated from each other and they will now act as a template. They will now act as a template. ये किस तरह का काम करेंगे बेटा, टेम्पलेट की तरह काम करने वाले हैं. ओके, एंड these template will synthesize this complementary strand. ओके, यानी मान के चलते हैं ये एक स्टैंड ये था, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड सिंथेसाइज कर लेगा. इसके पास जो बेस पेयर्स थे, ठीक है, वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सिंथेसाइज कर लेंगे. या हम और सिंप्लीफाई तरीके से कह सकते हैं, इसके पास जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज कर लेंगे. सो दिस वाज द पेरेंटल स्टैंड, यू नो. और जो नया स्टैंड बनेगा बेटा वो ये जो बन रहा है, कुछ इस तरह का स्टैंड यहाँ से आपको दिखेगा. दिस वन इज व्हाट, न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड. वी कैन मेक इट विथ डिफरेंट कलर्स. So these are the newly synthesized strands and these were the parental strand. So here 50% new and 50% are here parental combination. But जैसा इतना सिंपल तरीके से हमने बताया, इतना आसान भी नहीं होता है डीएनए का रेप्लिकेशन. इसके लिए वेरियस मशीनरीज होती हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूजन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन. Conclusion of the DNA replication or mechanism of the DNA replication or an outline of DNA replication I am going to write on your board. पूरे बोर्ड पे मैं बेटा आपका पूरा जो मैकेनिज्म है, पूरी समरी है या ट्रिक्स कह लीजिए, इंपॉर्टेंट स्टेप्स कह लीजिए, वो सारा मैं लिख दे रहा हूँ. उसके बाद 1 बाय 1 आपको समझाऊँगा. फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी मशीनरीज़ हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं या आयंस हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करने जा रहे हैं. देन आफ्टर इन द पार्ट नंबर 2 वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. इस पार्ट 1 में बेटा मैं पूरा मशीनरी और एंजाइम बताऊंगा, बेसिक स्टेप्स बताऊंगा और उन सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए फिर हम वीडियो नंबर 2 में क्या करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे. बट फॉर दैट यू ऑल हैव टू वॉच द कंप्लीट video till the end. So I am going to write some points and then after we will just elaborate those points and then we will straightforward move over the various enzymes or machinery of the DNA replication. Okay all dear students, तो अभी तक मैंने जो बताया वो आपके बोर्ड पे मैंने लिख दिया है. This will help in your just note making process. इससे आप नोट्स बना लेंगे. You can take the screenshot of these. मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं बताया है. All those points are elaborated here. That was explained orally. जहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं, Watson and Crick suggest the simple mechanism of DNA replication on the basis of double helical model. मैं बता चुका हूँ. Here two strands would separate and act as template. ये भी मैं बता चुका हूँ कि मान के चलते हैं कि अगर ये 2 स्टैंड्स थे कुछ इस तरह से, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होने के बाद टेम्पलेट की तरह काम करेंगे. एंड हियर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विल टेक्स प्लेस. इट मीन्स दैट
this is acting as a template and it will form or it will synthesize the new complementary strand. Then after completion of the replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized. मैं आपको बता चुका हूँ DNA replication is just CME conservative. Why? क्योंकि यहाँ पे 50%, ये मान के चलिए ये पेरेंटल था और यहाँ पे जो नया वाला बनेगा, यहाँ से ये जो नया स्टैंड बनेगा ये एक अलग कॉम्बिनेशन का होगा, तो 50% पेरेंटल एंड 50% न्यू. दैट्स वाई दिस इज DNA रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव. आगे हमने लिख दिया ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड गॉट सेपरेटेड. मैंने बताया आपको कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी, ठीक है. यहाँ हम कह सकते हैं DNA का जो डबल हेलिक्स था उनके बीच में जो क्या थे नाइट्रोजनस बेसिस थे वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा लिंक थे, बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा और वो सेपरेट हो गए, यानी ओपनिंग या अनवाइंडिंग हो गई, जो कि हेलिकेज एंजाइम ने किया था. तो पूरी की पूरी मशीनरी यहाँ पे लिखी हुई है. अच्छा, अब एक आपको इंट्रोडक्शन हम आपको और देते हैं कैसे एक्चुअल में DNA की अनकॉइलिंग होती है. मान के चलते हैं ये आपका क्या था, DNA था, इसको रैप अप कर देते हैं, ये रबर बैंड है, ये आपका मान के चलते हैं DNA था, ठीक है बेटा. अब ये जो DNA था इसमें 2 स्टैंड्स आपको दिख रहे होंगे, चूँकि ये क्या है कॉइल्ड है, एंटी पैरेलल है. अब इसमें जब हेलिकेज एंजाइम आएगा तो इसकी पूरे स्टैंड को ऐसे खोल देगा, और जब पूरे स्टैंड को ऐसे खोल देगा तो ये एक स्टैंड ऊपर वाला एक स्टैंड नीचे वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और टेम्पलेट की तरह काम करेंगे. अब एक स्टैंड जो था ये ऊपर और एक नीचे वाला अकेला ये टेम्पलेट हो गया और ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना लेगा. सो दिस इज व्हाट रेप्लिकेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मशीनरी ऑफ द DNA रेप्लिकेशन एज वेल एज वेरियस एंजाइम दोज आर रिलेटेड टू DNA रेप्लिकेशन. ओके बेटा, तो यहाँ से देखें आप मशीनरी और वी कैन राइट एंजाइम्स फॉर DNA रेप्लिकेशन. यानी DNA रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन सी मशीनरी कौन कौन से एंजाइम्स लगेंगे. कोई भी प्रोसेस करना है ना तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत तो पड़ेगी. सो लेट्स डिस्कस फ्रॉम हियर. द फर्स्ट वन इज हियर. यहाँ से हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं. फर्स्ट DNA हेलिकेज, या हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इज हेलिकेज. व्हाट इज दिस? अच्छा, नाम से ही कुछ क्लियर है कि हेलिकेज है, यानी हेलिक्स जो है DNA का उनका ये कुछ करने वाला है. सो ये क्या करता है, ओपन और अनवाइंड द DNA. Open or unwind the DNA. It means that if DNA was like that, अगर DNA कुछ इस तरह से था, ये क्या करेगा, इनको अब ओपन कर देगा, ठीक है, like this. How? Open or unwind the DNA by breaking the hydrogen bond. How? These DNA got separated. Here the hydrogen bond that was present between the nitrogenous bases got breaks, and by means of that these two strands are got separated. अच्छा बेटा, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप चलिए. मान के चलते हैं आपका मकान रोड साइड में था, ठीक है. हुआ क्या कि रोड को चौड़ा होना था और आपका मकान उस एरिया में या उस दायरे में आ गया जहाँ तक रोड थी. अब गवर्नमेंट ने कहा आपको घर गिराना पड़ेगा. अच्छा, अगर आपका घर गिराना पड़ेगा तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप मुआवजा ले लीजिए और अपना घर गिराने की परमिशन दे दीजिए. उन्होंने कहा ठीक है. सेम प्रोसेस यहाँ पे कौन है, DNA के लिए लालच दिया गया. DNA के लिए कहा गया कि हम एक हेलिकेज एंजाइम आपके पास भेज रहे हैं, यह आपके दोनों स्टैंड को अलग कर देगा. अलग करने के बाद एक नया स्टैंड आपको मिलेगा, ठीक है. सो हेलिकेज आया और यहाँ पे इनको अलग कर दिया. अच्छा, अगर आपका मकान टूटा है बेटा तो आपको टेंशन होगी कि नहीं होगी? होगी. तो उसी तरह से ये दोनों स्टैंड्स अलग हो गए हैं. कहने का मतलब पहले 2 भाई थे, दोनों एक साथ रहते थे. अब बंटवारा करके हमारे आधे भाइयों को पाकिस्तान भेज दिया गया, आधे भाई लोग हमारे कहाँ हिंदुस्तान में रह गए. तो
क्या हुआ, टेंशन है ना, टेंशन बढ़ी कि बताओ हमारे रिलेटिव तो पाकिस्तान में रह गए, अब उनके रिलेटिव हमारे यहाँ छूट गए, तो टेंशन हो गया। अब करना क्या है, उस टेंशन को दूर करना है। अच्छा, उस टेंशन को हम कैसे दूर करेंगे? देयर इज अनदर एंजाइम दैट इज नोन एज टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज, what is the role of this topoisomerase? This remove the tension between separated strands. How? by यहां से लिख लीजिए cutting, rotating and rejoining, और rejoining। कहने का मतलब आप बहुत टेंशन में थे, आपको ऐसी ऐसी जगहों पे घुमाया गया जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली थी, वो गए आप वहाँ, आपका मूड फ्रेश हो गया। तो वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है? टोपोआइसोमेरेज कर रहा है। हुआ क्या था कि हेलिकेज ने दो चीज़ों को अलग कर दिया था। अब उनको जो अलग कर दिया गया था, उनके बीच में टेंशन था, उस टेंशन को दूर करने का काम किसने किया? टोपोआइसोमेरेज ने किया। कैसे? कट कर दिया गया, ठीक है। कट करने के बाद उनको रिजवाइन कराया गया, रिजवाइन करा के या उनको हम क्या कर दिए? रोटेट कर दिए। कैसे? आप फिर से देखिए, ये था डीएनए का स्ट्रैंड्स, यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजनस बेसिस अटैच थे। हियर कम्स द एंजाइम हेलिकेज एंड अनवाइंड इट। इसको क्या कर दिया? अनवाइंड कर दिया, ये फ्री हो गए। फ्री होने के बाद चूंकि एक दूसरे से अलग हुए हैं ना, तो इनके बीच में मान के चलते हैं टेंशन है, ऐसे जैसे मान के चलते रस्सी है, रस्सी आपकी क्या है? कॉइल्ड है, उसको आपने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद छोड़ देंगे ना, तो फिर से वहीं चली जाएगी। हम आपको एक और अच्छा वाला एग्जाम्पल बताते हैं। कुत्ते की पूँछ आपने देखी होगी, ठीक है। कुत्ते की पूँछ को अगर आप पकड़े रहेंगे तब तक सीधी रहेगी, पाइप में डालेंगे ना तब तक सीधी रहेगी, छोड़ देंगे तो फिर अपनी पोजीशन पे चली गई। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है, अलग हुए हैं ना, लेकिन जैसे इनको मौका मिलेगा ना, ये कहेंगे चलो फिर से ज्वाइंट हो जाए। तो उसी को हटाने के लिए भाई साहब दूसरा एंजाइम लेके आए, जिसका नाम क्या था? टोपोआइसोमेरेज। एंड दिस टोपोआइसोमेरेज वाज रिमूविंग द टेंशन बिटवीन दीज टू स्ट्रैंड्स। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एंजाइम। अच्छा, तीसरा एंजाइम यहाँ से देखिए कौन सा है, उसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, यानी थर्ड एंजाइम दैट इज व्हाट? सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, और वी कैन राइट एंजाइम। ठीक है बेटा, यहाँ से देखिए हेलिकेज ने अलग किया था, इन्होंने क्या किया? कटिंग करके, रोटेटिंग करके, रीजॉइनिंग की जगह आप क्या कर सकते हो? यू कैन ऑल्सो राइट रीसीलिंग। ओके, सो हियर नाम से ही क्लियर है, सिंगल स्टैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये क्या काम करती है? स्टेबलाइजेशन की प्रक्रिया को ये आगे बढ़ाती है। सो हियर द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजेशन इज डन बाय सिंगल स्टैंड stabilizing protein. So this was all about the protein number 3 or enzyme number 3, that was single strand stabilizing protein. Now comes to the protein number 4. ओके बेटा, तो चौथा एंजाइम कौन सा है? यहाँ से देखिए फटाफट, चौथा एंजाइम है आपका लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? बहुत सिंपल सा काम है, जॉइंस न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स, जॉइंट्स न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स। और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय खुराना। अरे भाई, अपने भी साइंटिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत पीछे हैं। सो डीएनए लाइगेज वॉज डिस्कवर्ड बाय खुराना, और ये करते क्या हैं बेटा? ज्वाइन करते हैं न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स को। होता क्या है कि छोटे छोटे स्ट्रैंड्स नए नए बनते चले जाते हैं, तो मान के चलते हैं कि ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, तो इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज करेंगे। सो दिस वाज द एंजाइम नंबर 4, 1 2 3 4। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस
and then after we will discuss a most important enzyme of this DNA replication process, that is known as DNA polymerase, जो कि कई कैटेगरीज का होता है, कई टाइप्स का होता है. इस वजह से एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 5 से. Okay, all my dear students, so let's see about the next enzyme, that is DNA polymerase. Actually, we have told you earlier that DNA polymerase is the main enzyme that is responsible for replication of the DNA. Actually, in prokaryotes and in eukaryotes, there are separate categories of the DNA polymerase enzyme. In the case of prokaryote, or if you are considering the example of Escherichia coli, you will get 3 types of DNA polymerase. Those are DNA polymerase first, DNA polymerase second, DNA polymerase third. In the case of E. coli, that is known as Escherichia coli. Okay, and here DNA polymerase first, second and third all have separate functions. Okay, and out of these DNA polymerase first, DNA polymerase second, DNA polymerase third, DNA polymerase third is known as holo enzyme, because this DNA polymerase third along with some other subunits, those are pol 1, that is polymerase 1, polymerase 2, polymerase 4, polymerase 5, perform or aggregate or conclude the process of replication. We will discuss later on. So basically DNA polymerase is the main enzyme that is responsible for synthesis of or combining of deoxyribose न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, और ये जब कंबाइन हो जाती हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड तो क्या बनता है, न्यू स्ट्रैंड बनता है. सो बेसिकली व्हाट इज डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज इज अ पर्टिकुलर एंजाइम. व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम? दिस कंबाइंस द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड. जैसे जैसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जुड़ती चली जाती हैं, यहाँ पे एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता चला जाता है. कुछ पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में लिखे थे, हमने एज इट इज आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं. यू कैन कंसीडर मेन एंजाइम टेक्स पार्ट इन कंबाइनिंग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म न्यू स्ट्रैंड. मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट कॉपी है. इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप कह सकते हैं सिंथेसाइज डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड. इट मीन्स दैट न्यू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय मींस ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. एक तीसरी और सबसे छोटी अच्छी डेफिनेशन, कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन वेरी शॉर्ट टाइम. इसको हमने कहा डीएनए पॉलीमरेज. पॉलीमरेज क्यों है? क्योंकि ये क्या कराता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराता है. एंड ड्यू टू पॉलीमराइजेशन रिएक्शन it can forms a large number of nucleotide or huge number of nucleotides within short period of time. And this enzyme was discovered by, this is a very important line, this enzyme was discovered by Kornberg. यहाँ पे K लिख लीजिए बेटा. This enzyme was discovered by Kornberg, and in E. coli, Escherichia coli, there are 3 types of DNA. यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा एंजाइम, पॉलीमेरेज. ठीक है, दोज आर डीएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट. अगेन इसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में पोल फर्स्ट, सेकेंड डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट पोल सेकेंड. अगेन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट पोल थर्ड. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन द केस ऑफ ई कोलाई. यहाँ से हम देखेंगे फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. अब हम देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज का फर्स्ट का क्या रोल है और इसके क्या फंक्शन है. तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवर्ड बाय Kornberg, hence also known as, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, Kornberg enzyme. Kornberg
enzyme, what is the function of this, and repair, or we can write connects Okazaki fragment, connect Okazaki fragments। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है ये हम आपको अभी बाद में बताएंगे। एक्चुअली दिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इट इज ऑल्सो नोन एज कोर्नबर्ग एंजाइम। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। सेकेंड, हियर इट इज कनेक्टिंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है जब हम आपको बताएंगे कि दिस वॉज डीएनए, इसमें ऐसे ओपन हुआ, रेप्लिकेशन फॉर्क बना, रेप्लिकेशन फॉर्क बनने के बाद कौन आया, आरएनए प्राइमर आया। आरएनए प्राइमर जब आएगा तो वो क्या करेगा, एक आरएनए प्राइमर आपके 5 स्ट्रैंड की तरफ आएगा, 5 प्राइम एंड की तरफ आएगा। दूसरा फिर से जो आपका अपोजिट स्ट्रैंड है जहाँ पे 3 प्राइम एंड था वो नीचे की तरफ आएगा, एक में स्टार्टिंग की तरफ आएगा। कुछ ऐसे होता है। यहाँ से आप देखें, मान के चलते हैं डीएनए था, ये अनवाइंड हो गया है, और अनवाइंड होने के बाद थोड़ा बड़ा बनाते हैं। अनवाइंड डीएनए यहाँ पे आएगा कौन, प्राइमर। चूंकि ये आपका 5 प्राइम है, दिस वन इज 3 प्राइम एंड दिस वन इज 3 प्राइम एंड दिस वन इज 5 प्राइम, और 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही सिंथेसिस होनी है। तो ये प्राइमर आया और इधर की तरफ ये क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है। दूसरा प्राइमर कहाँ आके ज्वाइन होता है, यहाँ नीचे की तरफ आके ज्वाइन होता है और इस डायरेक्शन में ये सिंथेसिस कराता है। तो ये तो आपको हो जाता है लीडिंग स्ट्रैंड, और ये हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। बाद में हम आपको बताएंगे जब डीएनए रेप्लिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे। 2 स्ट्रैंड लीडिंग और लैगिंग बनते हैं, ठीक है। ये लीडिंग बनता है, लैगिंग बनता है, बट डायरेक्शन जो होता है रेप्लिकेशन का हमेशा 5 to 3 ही होता है। यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ 5 to 3 ही है। तो ये तो आपके लिए इतना सफिशियंट है। बाई कनेक्टिंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट, हाउ, बाय रिप्लेसिंग द RNA प्राइमर, बाय रिप्लेसिंग द RNA प्राइमर। ये RNA प्राइमर यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये आया था, इसको ये रिप्लेस कर देता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज। किसके द्वारा, जो आपका RNA प्राइमर, यहाँ से आप देख सकते हैं RNA प्राइमर रिप्लेस हो रहा है। यहाँ से देखिए ये आपका RNA प्राइमर था, ये रिप्लेस हो रहा है। कौन रिप्लेस कर रहा है इसको, दिस इज रिप्लेस बाय डीएनए स्ट्रैंड। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द RNA प्राइमर विद डीएनए स्ट्रैंड। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। दूसरा हम आते हैं एंजाइम जो कि है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। बेटा इसका जो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड है ये क्या करता है, रिपेयर करता है, रिपेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। इसका जब हम एप्लीकेशन बताएंगे, एक्चुअल प्रोसेस जो डीएनए रेप्लिकेशन का, वहाँ से सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। चूंकि हम ये एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपको बता रहे हैं कि इस एंजाइम का क्या रोल है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको प्रैक्टिकली हो सकता है अभी समझ में ना आए, लेकिन चिंता मत करिएगा। जब हम आपको डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस बताएंगे वहाँ पे सारे स्टेप्स आएंगे और इनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। सो हियर डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, दिस इज जस्ट रिपेयरिंग द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। ये बीपी मतलब बेटा ब्लड प्रेशर वाला नहीं है, नहीं तो आप समझ लें सर यहाँ पे ब्लड प्रेशर का रोल कहाँ से आ गया। तो बीपी सिंपली सजेस्ट दैट बेस पेयर्स। तो अभी तक हमने देख लिया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। अब यहाँ से एक और देख लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वाला भी, ठीक है बेटा। अब आते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की तरफ। हम इसको शॉर्टकट में लिखेंगे डीएनए पॉल थर्ड। आप समझ लीजिएगा कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पॉलीमरेज थर्ड की। बेटा इसका काम क्या होता है, सिंपली जो आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है ये कराता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कराता है, डीएनए रेप्लिकेशन और रेप्लिकेटिव एक्टिविटी, रेप्लिकेटिव एक्टिविटी। एक्चुअली बेटा इसके 3 सब यूनिट्स होती हैं। मैं आपको बता दूं कि वो यूनिट्स कौन कौन सी हैं। एक होती है अल्फ़ा, एक होती है बीटा जिसको कभी कभी हम बीटा 2 पढ़ते हैं, और एक होती है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जो होती है ये कराती है प्रूफ रीडिंग। क्या कराती है, प्रूफ रीडिंग। एप्सिलॉन यूनिट क्या करा रही है बेटा, यहाँ से
प्रूफ रीडिंग करा रही है। ये क्या कराती है? ये कराती है क्लैंप। ये क्लैंप या कराती है इसको होल्ड करने को, जो डीएनए के स्टैंड्स होते हैं उनको होल्ड करने का काम करती है, क्लैंप बनाने का काम करती है। और जो आपकी अल्फा सब यूनिट होती है ये क्या करती है? ये होती है कैटालिटिक, यानी पूरे प्रोसेस को ये कैटालाइज कर रही होती है। सो देयर आर 3 सब यूनिट्स इन डीएनए पॉलीथर्ड, अल्फा, बीटा 2 एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन प्रूफ रीडिंग करती है कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय कोई गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है। क्लैंप को होल्ड करने का काम, जो नए स्टैंड्स बन रहे हैं उनको होल्ड करने का काम यहाँ से देखिए बीटा 2 या बीटा यूनिट करती है, और अल्फा इसका पूरा रोल ही होता है कैटालिटिक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज एंड वी हैव डिस्कस इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट और वी कैन राइट ई कोलाई, ठीक है। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अब इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है कहाँ? यूकैरियोट्स में। यू आर जस्ट सीइंग in the case of E. coli there was 3 kinds of DNA polymerase or polymerases, while in the case of eukaryotes there are 5 categories. Those are alpha, beta, lambda, delta and epsilon. So we will discuss now DNA polymerase in the case of eukaryotes. So यहाँ से आप देखें, इसको बेटा मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ओके बेटा, सो ये डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स, यहाँ से हम फटाफट आपको बताते हैं चूँकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। 5 टाइप्स होते हैं यहाँ, 5 टाइप्स। ओके, फर्स्ट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ये क्या करता है? इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, इनिशिएशन ऑफ यानी रेप्लिकेशन शुरुआत कौन कराएगा? आपका अल्फा सब यूनिट कराएगी। कहाँ? डीएनए पॉलीमरेज की यूकैरियोट्स के केस में। बीटा सब यूनिट क्या करते हैं? रिपेयर ऑफ डीएनए, ये पूरे रिपेयरिंग का काम करती है। गामा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर, ठीक है बेटा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर का काम हमारी गामा सब यूनिट कर रही है। डेल्टा ये पूरा रेप्लिकेशन एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, रेप्लिकेशन एक्टिविटी मॉडरेशन, यानी पूरे के पूरे रेप्लिकेशन एक्टिविटी को एक थर्ड आई कह सकते हैं, वो देखती रहती है कि एक्चुअल में कौन सा प्रोसेस कैसे क्या हो रहा है, और सबको लीड या गाइड करने का भी काम कह सकते हैं हम यहाँ से। लास्ट में एप्सिलॉन यूनिट है, ये प्रूफ रीडिंग कराता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ हीला सेल्स। ये कहेंगे सर नई सेल्स आप लेके आए हैं, ठीक है बेटा। हीला सेल्स का पॉलीमराइजेशन, हीला सेल्स क्या होती है? ये सबसे बढ़िया, सबसे प्रिमिटिव कल्चर की जाने वाली सेल्स हैं हमारी बॉडी की, और इनको हम कहते हैं इमॉर्टल सेल्स, इमॉर्टल सेल्स। सो हीला सेल्स आर नोन एज इमॉर्टल सेल्स। और स्टार्टिंग से भी बेटा जितने भी हमारे साइंटिफिक अप्रोचेस हुए हैं उसमें से अगर हमने किसी सेल्स को कल्चर किया है तो वो हीला सेल्स हैं। इसी की एक्टिविटी को क्या किया जाता है? पॉलीमराइज किया जाता है। किसके द्वारा? एप्सिलॉन यूनिट के द्वारा। और ये जो प्रूफ रीडिंग है बेटा, प्रूफ रीडिंग, ये प्रूफ रीडिंग एक्चुअल में कौन करा रहा होता है? एप्सिलॉन यूनिट करा रही होती है। कहाँ? प्रोकैरियोट्स के केस में। चूंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यूकैरियोट्स के केस में, इसलिए इसको हम हटा भी सकते हैं, नहीं आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर आपने यहाँ पे प्रूफ रीडिंग यहाँ पे भी बताई है, यहाँ पे भी बता रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आप जान के चलिए कि जो एप्सिलॉन यूनिट होती है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, ये क्या कराती है? पॉलीमराइजेशन कराती है। किस सेल्स की? जिस सेल्स पे हम अपना ये एक्सपेरिमेंट करा रहे होते हैं या जिस सेल पे ये टोटल प्रोसेस हो रहा होता है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स एंड मशीनरी
ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जो भी चीज़ें आपके मन में बची होंगी, जो भी थोड़ा बहुत डाउट्स होगा, व्हेन यू विल सी द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देन ऑल द पॉइंट्स विल बी क्लियर। ठीक है, हमने अब आपको डीएनए का रेप्लिकेशन बताना है, उसमें हम आपको वायरस स्टेप बताएंगे। ठीक है, कि जो न्यूक्लियोटाइड है उनका एक्टिवेशन कैसे होता है, नए स्टैंड को आइडेंटिफाई कौन करता है, डीएनए प्राइमर आके कहाँ से जुड़ता है, ठीक है, अनवाइंडिंग कौन कराता है, टोपोआइसोमेरेज की एक्टिविटी, जो जितने भी यहाँ से हमने देखे, ऑल दीज पॉइंट्स विल बी डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डीएनए replication. So this is all about for today. I hope that after watching the video there will not be any doubt, and if you think there is any doubt you can leave in your comment box and I will try my best to answer your questions. So don't forget to like, subscribe the channel and share with your friends. So that is all about for today. Like always, keep smiling, have a nice day and Jai.